নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ এটা দুটা নহয় 13টাকৈ সুপাৰ গ্যাৰান্টি দিছে বিজেপিয়ে লাখ লাখ জনতাক উদ্দেশ্য কৰি 13টাকৈ সুপাৰ গ্যাৰান্টি বিজেপিৰ এই 13টাকৈ গ্যাৰান্টিৰ ভিতৰত আছে প্ৰথমটো হৈছে 5 লাখ পৰিয়ালে পাব ফ্ৰী কাৰেন্ট অৰ্থাৎ 5 লাখ পৰিয়ালক বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ সেৱা যোগান ধৰিব বিজেপিয়ে তাৰোপৰি প্ৰত্যেক গৰাকী মহিলাই পাব প্ৰতি মাহে 2100 টকা অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক গৰাকী মহিলাই প্ৰতি মাহে 2100 টকাকৈ লাভ কৰিব বিজেপিয়ে প্ৰত্যেক গৰাকী মহিলাক 2100 টকাকৈ দিব ইয়াৰ উপৰি 2 লাখ যুৱক যুৱতীয়ে লাভ কৰিব চৰকাৰী চাকৰি যিসকল শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তাৰ ভিতৰত 2 লাখ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰি দিব বিজেপি এই 13টাকৈ সুপাৰ গ্যাৰান্টি দিয়া হৈছে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা হাৰিয়ানা যেহেতু হাৰিয়ানাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু হাৰিয়ানাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ লগত সংগতি ৰাখি হাৰিয়ানাৰ জনতাক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ 13টাকৈ সুপাৰ গ্যাৰান্টি দিছে বিজেপিয়ে কিন্তু কথাটো হৈছে 13টা গ্যাৰান্টিৰ ভিতৰত এই যি তিনিটা গ্যাৰান্টি হে তিনিটা গ্যাৰান্টি অধিক আকৰ্ষিত কৰিছে এই মুহূৰ্তত হাৰিয়ানাৰ জনতাক পুনৰবাৰ কৈছো এই তিনিটা বিশেষ গ্যাৰান্টি হৈছে 5 লাখ পৰিয়ালে পাব ফ্ৰী কাৰেন্ট অৰ্থাৎ 5 লাখ পৰিয়ালক বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ সেৱা যোগান ধৰিব বিজেপিয়ে যদিহে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰে পুনৰ এবাৰ হাৰিয়ানাত তদুপৰি প্ৰত্যেক গৰাকী মহিলাক হাৰিয়ানাৰ প্ৰত্যেক গৰাকী মহিলাক প্ৰতি মাহে 2100 টকাকৈ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে বিজেপিয়ে আনহাতে হাৰিয়ানাৰ 2 লাখ যুৱক যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰো প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে বিজেপিয়ে শাসনত পুনৰ অধিষ্ঠিত হ'ব পাৰিলে এই আটাইকেটা গ্যাৰান্টি পূৰণ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে বিজেপিয়ে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এই ডাঙৰ খবৰ লাখ জনতাক 13টাকৈ সুপাৰ গ্যাৰান্টি বিজেপিৰ 5 লাখ পৰিয়ালে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ সেৱা হাৰিয়ানাৰ 5 লাখ পৰিয়ালে বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ সেৱা লাভ কৰিব হাৰিয়ানাৰ প্ৰত্যেক গৰাকী মহিলাই পাব প্ৰতি মাহে 2100 টকাকৈ লাডো লক্ষ্মী আঁচনিৰ জৰিয়তে পাব প্ৰতি মাহে 2100 টকাকৈ এই গ্যাৰান্টি দিছে বিজেপিয়ে সিলিন্ডাৰৰ বাবদ প্ৰতিটো পৰিয়ালে পাব 500 টকাকৈ 2 লাখ যুৱক যুৱতীয়ে লাভ কৰিব চৰকাৰী চাকৰি শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক ভাল খবৰ দিছে হাৰিয়ানাত বিজেপিয়ে যে যদিহে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হয় পুনৰ এবাৰ তেনেহলে 2 লাখ যুৱক যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰি দিয়া হ'ব কলেজলৈ যোৱা প্ৰতি গৰাকী ছাত্ৰীয়ে পাব একোখনকৈ স্কুটি এই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে বিজেপিয়ে প্ৰতিজন দৰিদ্ৰ লোকে 10 লাখ টকা পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ সুবিধা লাভ কৰিব কেৱল ইমানেই নহয় 70 ঊৰ্ধ্বৰ বৃদ্ধ লোকে অতিৰিক্তভাৱে আৰু 5 লাখ টকালৈকে চিকিৎসাৰ সুবিধা লাভ কৰিব কৃষক ৰাইজৰ বাবে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে বিজেপিয়ে কৃষকৰ দ্বাৰা উৎপাদিত 24 বিধ ফসল এমএসপিৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰা হ'ব বুলি গ্যাৰান্টি দিছে বিজেপিয়ে প্ৰতিজন অগ্নিবীৰে লাভ কৰিব চৰকাৰী চাকৰি হাৰিয়ানাৰ প্ৰত্যেক গৰাকী অগ্নিবীৰে চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে বিজেপিয়ে আনহাতে হাৰিয়ানাৰ 5 লাখ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে পাব চৰকাৰী ঘৰ প্ৰতিটো পিছপৰা জাতিৰ বাবে পৃথকে উন্নয়ন বোৰ্ড গঠন কৰা হ'ব বুলি গ্যাৰান্টি দিছে বিজেপিয়ে অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ নিবনুৱা উদ্যমী যুৱক যুৱতীয়ে পাব 25 লাখ টকাকৈ ঋণ এই গ্যাৰান্টি বিজেপিৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো চৰকাৰী মেডিকেল কলেজ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত পঢ়া ওবিসি এসসি বৰ্গৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাব সম্পূৰ্ণ ছাত্ৰবৃত্তি সকলোকে ছাত্ৰবৃত্তি প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে বিজেপিয়ে হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে এই গ্যাৰান্টি দিছে বিজেপি দলে আকৌ কৈছো হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচন সমাগত হাৰিয়ানাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হাৰিয়ানাত যাতে পুনৰ এবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে তাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি বিজেপিয়ে 13টাকৈ সুপাৰ গ্যাৰান্টি দিছে হাৰিয়ানাৰ জনতাক য'ত কোৱা হৈছে যে 5 লাখ পৰিয়ালক বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ সেৱা যোগান ধৰা হ'ব প্ৰত্যেক গৰাকী মহিলাক প্ৰতি মাহে 2100 টকাকৈ দিয়া হ'ব 2 লাখ যুৱক যুৱতীয়ে লাভ কৰিব চৰকাৰী চাকৰি
আৰু MSPৰ জৰিয়তে কৃষকৰ দ্বাৰা উৎপাদিত 24 বিধ ফসল ক্ৰয় কৰা হ'ব বুলি গ্যাৰান্টি দিছে বিজেপিয়ে আৰু প্ৰতিজন দৰিদ্ৰ লোকে 10 লাখ টকা পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। ইয়াৰ উপৰি অতিৰিক্তভাৱে 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত চিকিৎসাৰ সুবিধা লাভ কৰিব দৰিদ্ৰ লোকে। এইকেইটা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে বিজেপিয়ে হাৰিয়ানাৰ জনতাক আৰু বিজেপিৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতি এই গ্যাৰান্টিক লৈ এতিয়া দেশজুৰি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। এই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাৰ ভাষ্য আমাৰ লগত আছে নিজৰ ভাষণত। এইকেইটা গ্যাৰান্টিক লৈ কি কৈছে জেপি নাড্ডাই শুনো আহক। इस संकल्प पत्र के लोकार्पण पर मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और सज्जन वृंद, संकल्प पत्र को लोगों की नजरों में एक डाइल्यूटेड डॉक्यूमेंट बना दिया। उस डॉक्यूमेंट का रेलेवेंस कांग्रेस ने और कांग्रेस की संस्कृति ने लंबे समय में उसकी इस रेलेवेंस को समाप्त कर दिया। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक औपचारिकता है। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक रिवायत को पूरा करना है और उनके लिए यह डॉक्यूमेंट लोगों के साथ छलावा करना है। अब मैं अगर इसकी चर्चा करूं तो मैं सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगा कि आप हरियाणा की एक को ही याद कर लीजिए। 10 साल पहले हरियाणा की छवि क्या थी? 10 साल पहले हरियाणा की छवि पर्ची और खर्ची पर नौकरी लगने वाली स्थिति थी। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? पर्ची पर नौकरी लगती थी कि नहीं? नौकरियों के चलते लोगों को सजाएं हुई कि नहीं हुई? जो सत्ता में बैठे थे वो तकलीफ में आए कि नहीं आए? ये सारी आप बताइए 10 साल पहले भ्रष्टाचार की छवि थी कि नहीं सरकारों की? रखने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको निभानी है और आपको संकल्प को पूरा करना है। मैं तो आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रख दूंगा। मैं आपके सामने जानकारियों के साथ विषयों को रखना चाहूंगा। और जब मैं इसकी चर्चा 10 लाख है, यानी हरियाणा का एक्सपोर्ट 3 टाइम यानी 3 गुना बढ़ गया। यह भी हमको ध्यान में रखना है। मैं स्वास्थ्य मंत्री भी हूं, आजकल मेरे पास जिम्मेवारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनोहर लाल जी जानते हैं, इन्होंने संकल्प ले रखा था हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। 7 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 15 मेडिकल कॉलेज हैं और यह भी दुगना हो गया है, दुगने से ज्यादा हो गया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। हमारे मेडिकल कॉलेज की सीट्स 700 होती थी, आज मेडिकल कॉलेज की सीट्स 2185 हैं। और जब मैं 2185 बोलता हूं तो यह भी आप ध्यान रखिए कि यह तिगुना हो गया, ट्रिपल हो गया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जो बिजली 24 घंटे गांव में आने की बात थी, 2014 में पत्रकार बंधु नोट कर ले, हरियाणा में 538 गांव में 24 घंटे बिजली थी और आज 68,000 गांव में बिजली 24 घंटे है। इस बात को भी 58,000 गांव में बिजली है। इस बात 5800 गांव में बिजली है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से क्रॉप कंपनसेशन। अब बहुत सी बातें, यहां किसान की चर्चा बहुत होती है और हमारे घड़ियाली आंसू बहाने वाले नेता कांग्रेस के कोई कम नहीं है। हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा करने में लगे रहते हैं। ऐसे ऐसे नेता हैं जो किसानों की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्रॉप का कंपनसेशन 1,158 करोड़ रुपए दिए गए
और भारतीय जनता पार्टी ने क्रॉप के कंपनसेशन में 12,500 करोड़ रुपए दिए। 10 टाइम क्रॉप का कंपनसेशन में इजाफा हुआ, ये आप ध्यान में रखिए। इसलिए किसानों के हित चिंतक जो बनते हैं, आंकड़ों में कहां दिखते हैं, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। उसी तरीके से क्रॉप डैमेज के जो कंपनसेशन है, वह 6,000 प्रति एकड़ था, उसको आज बढ़ा करके 15,000 प्रति एकड़ कर दिया गया, 2.5 गुना बढ़ा दिया गया। ये हमारे क्रॉप का कंपनसेशन दिया जा रहा है। इसलिए किसानों के हित चिंतक कौन रहा है, इसका विश्लेषण हमारे पत्रकार बंधु जरूर करें। ओल्ड एज पेंशन तिगुनी कर दी गई, 1,000 होती थी, आज 3,000 है। उसी तरीके से एमएसपी जो सिर्फ 8 क्रॉप्स पर मिलती थी, 8 क्रॉप्स, ये किसान के हित चिंतक, ये किसान के हितैषी बरसों से 8 से ज्यादा फसलों पर एमएसपी नहीं देते थे, आजकल एमएसपी की गारंटी मांगने फिर रहे हैं। इनको मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारी सरकार थी जिसने आज 24 फसलों पर, 24 क्रॉप्स पर उसके लिए एमएसपी देना निश्चित किया है और उसको आगे बढ़ाया है। ये बात भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए जो कहा था, वो जो नहीं कहा था, वो भी करके दिया है। मैं यहां आपके सामने बताना चाहता हूं, जिसके बारे में इन्होंने हमारे सैनी साहब ने आपको बता दिया कि हमने 100% अपना 2014 का और 2019 का मैनिफेस्टो लागू करने के बाद हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति ये किसने सिखाई? मैं पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहता हूं, 10 साल पहले आपने देखा था किसी नेता को रिपोर्ट कार्ड रखते हुए? 10 साल पहले किसी को देखा था आपने कोई आंकड़े रखते हुए? लेकिन आज हम आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हर खेत को पानी इस स्कीम के तहत हमने हर एक एग्रीकल्चरल लैंड को आज सिंचित कर दिया है, 100% इरिगेटेड कर दिया है। ये बदलता हरियाणा है जिसको हमको समझना है। ये किसान की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। इंटरेस्ट फ्री एग्रीकल्चरल लोन जो है वो 3 लाख फार्मर्स को दिया जाएगा, उसकी भी व्यवस्था की गई है। उसी तरीके से ये जब मंडी में जाते हैं तो उनको 10 रुपए की थाली भोजन की मिल सके, इसकी भी व्यवस्था की गई है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो दिल्ली सोनीपत पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको शुरू कर दिया गया है। और उसी तरीके से भारत का पहला एलिवेटेड रेलवे लाइन वह आपके शहर रोहतक में बनी है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से हिसार को एयरपोर्ट बनाया गया है, दिल्ली के लिए, जयपुर के लिए, जम्मू के लिए, देहरादून के लिए यहां से एयर सर्विसेज शुरू हुई हैं और 1,000 से ज्यादा खेल नर्सरी बनाई गई और हरियाणा स्टार्टअप मिशन को भी प्रारंभ किया गया। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो विवाह शगुन योजना में एनुअल इनकम जो थी उसको 1.8 लाख तक बढ़ा दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी बहनें उसमें कवर हो सके, उस बात को किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरियाणा प्रदेश के लिए टैक्स डिवोल्यूशन में 4 गुना बढ़ा दिया और 76,000 करोड़ रुपए आपको टैक्स डिवोल्यूशन में हरियाणा को दिए गए। उसी तरीके से ग्रांट्स इन एड में 3.5 गुना बढ़ा दिया गया, आपको 70,000 करोड़ रुपए उसमें भी दिए गए। स्मार्ट सिटी में फरीदाबाद को और करनाल को 15,000 करोड़ रुपए दिए गए, इसकी भी व्यवस्था की गई है। और जल जीवन मिशन में आपके लिए हर घर को नल दिया जाए, इसकी सुव्यवस्था हरियाणा की सरकार ने किया, जो कहा था वो करके दिया है। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, मैं 9:45 बजे अपने घर से निकला हूं और 11:30 बजे मैं रोहतक पहुंच गया हूं। कभी 10 साल पहले कल्पना की थी क्या? कभी कल्पना की थी? 4 घंटे लगते थे। ये फर्क साफ है जिसको हमको समझना चाहिए। आज आईआईटी दिल्ली का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। आपके यहां कैंसर का सेंटर, एम्स का एक्सटेंडेड बिल्ड प्रोग्राम वो झज्जर गया है। हीरा में यानी हाईवेज, इंटरनेट,
रेलवेज और एयरपोर्ट्स में हम आगे बढ़े हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर, अमृतसर भटिंडा जामनगर, ये सारे एक्सप्रेसवे हरियाणा के थ्रू होकर के जा रहे हैं और हरियाणा के जीवन में मूल चूल परिवर्तन करने में बहुत बड़ा योगदान है, अमूल परिवर्तन करने में बहुत बड़ा योगदान है। इसको भी हमको समझना चाहिए। रेलवे में आज आपका इलेक्ट्रिफिकेशन 100% हो गया है। रेलवे का बजट हरियाणा में 9 टाइम्स बढ़ा दिया गया है और उसी तरीके से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेवाड़ी से लेकर मदर तक इसका भी बनाने का काम चला है। तो इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर में 6000 गांवों को जोड़ लिया गया है, 6000 विलेजेस को ये पहुंचा दिया गया है। और हिसार का, जैसा मैंने बताया, एयरपोर्ट को ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। इसलिए ये मैंने सारी बातें आपके सामने किस लिए बताई? इसलिए पत्रकार बंधु कि जब मैं आकर के आपके सामने हरियाणा का संकल्प पत्र रखता हूं तो आप ये ध्यान में रखिए, जैसा ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, दिस इज अ वेरी सीरियस डॉक्यूमेंट एंड दिस इज द कमिटमेंट। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समयबद्ध तरीके से अगली बार जब आपके पास आएगी तो इन सारे वायदों को पूरा करके आएगी। इस बात को हम ध्यान में रख करके चलें और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रति माह 2100 रुपए का 2100 रुपए का सहायता प्रदान की जाएगी। उसी तरीके से आईएमटी खरखोदा के तर्ज पर 10 अत्याधुनिक यानी मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल शहर बनाए जाएंगे और 50,000 से ज्यादा युवा जो आसपास के गांव के होंगे उनको उद्यमियों से बातचीत करके उनको वहां पर रोजगार दिया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसी तरीके से चिरायु आयुष्मान में जो आपको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलता है उसको 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। प्रति वर्ष 10 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ 70 वर्ष से ऊपर के हमारे जो परिवार में लोग होंगे उनको अलग से परिवार के लिए 10 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी। यदि 1 हो 2 हो उनको 5 लाख रुपए की व्यवस्था उनके लिए अलग से की जाएगी। यह व्यवस्था की जाएगी। एमएसपी में 24 फसलों की एमएसपी जारी रहेगी, उसको जारी रखेंगे। उसी तरीके से हम 2 लाख युवाओं को बिना खर्चे के और बिना पर्ची के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से गरीब का, गांव का बेटा रोजगार लग सके, सरकारी नौकरी देने का काम 2 लाख लोगों को देंगे। इसकी हम व्यवस्था करेंगे। उसी तरीके से हम 5 लाख युवाओं को अन्य रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे और उसके लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत मासिक रूप से मंथली उनको स्टाइपेंड उपलब्ध कराएंगे और उनको हम 5 लाख युवाओं को हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। हम शहरी और ग्रामीण इलाके में 5 लाख आवास उपलब्ध कराएंगे। 5 लाख आवास बनेंगे शहरी और ग्रामीण में, ताकि हमारे बीपीएल और हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के दायरे में आने वाले लोग हैं उसमें कोई भी व्यक्ति बिना पक्के छत के न रहे, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। इसको हम पूरा करेंगे। हम सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की व्यवस्था करेंगे। अब कोई भी हरियाणा का व्यक्ति डायलिसिस की व्यवस्था से बाहर नहीं रहेगा, उसको सरकारी व्यवस्था में डायलिसिस देंगे। और हम सरकारी अस्पताल और प्राइवेट में भी फ्री डायग्नोसिस की सुविधा देंगे, फ्री उसका इलाज की डायग्नोसिस की व्यवस्था करेंगे। इसको